Thank you. It's great. Because this would be then two-way. Otherwise, we would be just listening and there won't be any reaction to the speaker and they won't understand that we are understanding or taking something from the session or not. Thank you very much, everybody. So today we are in this session two of the new series we have joined last week, the science of forgiveness. We have learned several things that how we need to maintain our temper, how to behave promptly. Of course, we do it, but yes, there are certain things that we do, and then sometimes we skip some things when we come into certain situation. Recording in progress. Let's just start with the session today. Today we have Sangeeta Didi with us. Didi, welcome to the session. Over to you. Om Shanti, everybody. Good morning, Good morning, all Didi. of you. All okay with this new series? Everyone enjoying the topic? Did you like the topic, or is it not so relevant as a corporate person? Is it relevant or not? Yeah. It was very nice. It was nice. Okay. Anyone applied something? Yes. Okay, wonderful. Who is it? Yes, brother. Oh, Govind Bhai. So we can have some experience, one experience. Yes. Yes, ma'am. Feel very peaceful. Achha. Yes. Okay, felt very peaceful. Yes. Okay, when you dealt with it. Okay. And be happy. Mhm. And Be happy. be happy. Okay. अच्छा. तो नेचुरल है कि जितना हम इस टाइप की बातें सुनते हैं तो हमारे दिस इज द चेंज विच अकर्स कि यू डोंट नो हाउ वेयर द हैप्पीनेस वाज लॉस्ट. चलिए 1 मिनट डीप साइलेंस करते हैं और हम व्हाटएवर हम सुनेंगे हम एम रखेंगे कि किसी भी तरह से उसको हमको अंदर डालना है. ओके 1 मिनट साइलेंस करते हैं, अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट समझते हैं. आई एम अ प्योर सोल. Pure soul, and in this pure soul, whatever goes inside will be accepted and I'll implement it. Om Shanti. तो आज का हमारा ये टॉपिक है साइंस ऑफ फॉरगिवनेस. एंड फर्स्ट इज अब कहाँ हमको फॉरगिवनेस की जरूरत होती है, बिकॉज एंड हाउ फॉरगिवनेस वर्क्स. अच्छा, इसमें से आप में से कितना समझते हैं कि वी नीड टू फॉरगिव, हमको फॉरगिव करना दूसरे को. मतलब द वन हु फॉरगिव्स इज बिगर, ये बड़ा होता है क्योंकि वो फॉरगिव करता है, वो बड़ा होता है. समझते हैं हमारे में से कोई? अब देखो, अच्छा आप समझते हो हाउ दिस साइंस ऑफ फॉरगिवनेस. अब क्या होता है कि सिंपल स्टाइल है कि कुछ बात हो जाती है और उसमें कोई इंसिडेंट हो जाती है, आपने कभी कुछ बोला हमको और फिर जब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा, आई क्रिएटेड हर्ट एंड देन आई एम लिविंग विद दैट पेन. अच्छा, नाउ द पेन इज इनसाइड. बिकॉज आई फेल्ट कि क्या है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे करना चाहिए क्या,
इतना भी नहीं समझते हैं क्या? मैंने तो कभी ऐसे नहीं किया. अब हु क्रिएटेड द पेन? You did something, you spoke something, I didn't like it. अब हो सकता है आपको तो याद भी नहीं कि आपने ऐसे कुछ बोला, और मैं उसको क्रिएट करके I lived with that pain. So now who needs to forgive whom? Do I need to ask you that you should say sorry for what you said so that my pain would get healed? Or plus more important is in this case, suppose you just don't remember कि मैंने इतना क्या बोला था, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, हमको तो याद ही नहीं, तो रियलाइजेशन भी नहीं, और इसलिए भूलने की तो बात ही नहीं है कि मैं क्या भूलूं. अब पेन किसने क्रिएट किया? हमने. तो अब जो फॉरगिवनेस, मानक सर वाला तो मानक सर ने दे दिया था ना आपको. जो फॉरगिवनेस जिसको चाहिए वो किसको चाहिए? फिर मुझे चाहिए. और अब मेरे अंदर वो हीलिंग है, अब मेरा घाव है इधर हाथ में, सो हु विल क्योर दैट घाव? मैं अनलेस एंड अनटिल आई गो टू द डॉक्टर, आई डू टेक सम मेडिसिन, माय इंजरी वोंट बी क्योर्ड ना. You can at the most take me to the doctor or you can provide me all these medicines, but खाना तो मुझे पड़ेगा. तो I have created the injury कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया. So who needs to forgive whom? So therefore, if I don't release, so what is that forgiveness? कि so I have to release that pain, or तो the one which I created, and then that release emotional pain जो है वो निकल जाना ही मेरे लिए forgiveness. और फिर जब वो निकल जाता है तब हम कहते ओके नाउ यू आर फाइन. क्योंकि अगर उसने मुझे सॉरी बोल भी दिया कि नहीं आई एम वेरी सॉरी सपोज, लेकिन मैंने वो पेन मेरे अंदर अभी भी है, आपने ऐसे किया, इतना कहा, ऐसे करना चाहिए क्या, सो आई हैव नॉट रिलीज्ड इट, सो विल आई बी फ्री फ्रॉम दैट पेन? So unless and until I am free from the pain, I'll continue to live in pain. तो इसलिए forgiveness का मतलब हुआ कि जितना हम अपने forgiveness का मतलब to free one who is in pain. Simple definition है. So who is in pain here? You have forgotten. You don't remember. और आपके लिए वो तो कोई बड़ी बात नहीं थी, आपने कह दिया, लेकिन मैं बंध गई हूं, मैं होल्ड कर रही हूं, तो मेरे हाथ में वो पूरा कांटा है, तो किसको छोड़ना पड़ेगा? हाथ का कांटा, जिसके हाथ में कांटा है. तो इसलिए गोल्डन प्रिंसिपल है, आई कैन नॉट फॉरगिव अदर्स बिकॉज अब मेरा पेन मुझे रिलीज करना पड़ेगा, और इसलिए आपके सॉरी कहने से क्या मेरा पेन रिलीज हो जाएगा? एंड आपने एक वर्ड सॉरी बोल दिया, एंड इवन टू दैट एक्सटेंट कि चलो आपने कह दिया सॉरी, पर अगर मैंने इतना सारा 2 दिन तक मैं सोचती रही, कभी कभी 1 हफ्ते तक सोचती रही, तो मेरे लिए तो वो पेन बहुत बड़ा है ना. तो अनलेस एंड अनटिल आई एम नॉट रेडी to release that pain, I'm not, your sorry also will have no impact on me. तो किसको रिलीज करना है, कौन करेगा? तो जिसको forgiveness, therefore I cannot forgive you and you cannot forgive me. Because I have to get rid of my pain. So therefore this is the golden principle. I do not have the power to release anyone else emotional pain. क्योंकि इधर है ना, अंदर है, मेरे छाती में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है. What can you do for it? What can you do? Can you remove my pain? You can provide some facilities.
सिमिलरली पेन, दिस इज इमोशनल पेन, इसलिए फॉरगिवनेस इज ओनली आई एम रेडी, आई कैन फॉरगिव माई सेल्फ, और उसमें भी जब मैं रेडी हूं तभी वो फॉरगिवनेस होगी। जैसे सपोज, और देखो रेडीनेस भी कैसे होगी, हाउ डज दिस फॉरगिवनेस वर्क? फॉर एग्जाम्पल, सपोज सोल इज वीक, व्हाई कांट दे फॉरगिव मी? पेन का भी फॉर्मूला क्या है कि जितना सोल वीक है पेन ज्यादा फील होगा। फॉर एग्जाम्पल, बात की साइज जितनी भी है, नाउ सपोज एक बैग है, अब आपके पास आपकी स्टेमिना बहुत कम है, तो आपने उठाया और आपने कहा बहुत भारी है, आई कैन नॉट डू इट। तो अब मैं चाहे कितना भी, अब मेरे लिए वो बैग बहुत हल्की है और मैंने तुरंत उसको उठाया, मैंने कहा क्या है, उठा लो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, पर आपके लिए वो बैग बहुत भारी है। अब मैं चाहे कितना भी कह दूं उसमें कुछ भारी नहीं है, बहुत हल्की है, लेकिन आपको भारी लगती है। व्हाई? बिकॉज आपकी स्टेमिना उतनी कम है, आपको नेचुरल भारी लगेगी। अब मैं चाहे मेरा कितना भी एडवाइस है कि नहीं भारी नहीं है, इजी है, ट्राई करो, मैं उठा सक रही हूं, आप क्यों नहीं उठा सकते हो? इज माई कंपैरिजन विथ यू इन दिस मैनर राइट? क्योंकि मैं उठा सकती हूँ डज इट मीन आप भी उठा सकते हो? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर स्टेमिना। इसलिए अब हम कितना भी एडवाइस करें किसी को, भूल जाओ ना, छोड़ो ना, खत्म करो इस बात को, लेकिन वो नहीं खत्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी सोल की स्टेमिना उतनी कम है। तो इसलिए हमारा एडवाइस क्या होना चाहिए? अब जैसे आप नहीं उठा सकते हो, तो मेरा एक्चुअल एडवाइस क्या होना चाहिए जिसमें मुझे, जो मैं रियली कर सकती हूँ, मैं बैग नहीं उठा सकती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, I can increase my stamina. So if you can advise me something that will help me to increase my stamina, वो वर्किंग है। लेकिन ऐसे ही हम कह दें, तो इसीलिए हम कह देते छोड़ो क्या है, कुछ ये इतना क्यों सोचते हो, लेकिन मेरा ये कहना वेस्ट होता है। तो मेरा ये, मुझे उसकी सोल पावर कैसे इंक्रीज हो, दैट आई कैन हेल्प। और उसकी सोल पावर इंक्रीज करने के लिए, अब देखो फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ है ना, एक इनविटेशन आया, अब उनका व्हाट्सएप इनविटेशन उस हस्बैंड के पास आ गया शादी का, तो जैसे ही उसने, मतलब किसी ने फोटो क्लिक की, कार्ड की और वो भेज दी। अब उस हस्बैंड को जैसे वो इनविटेशन मिला, उसको गुस्सा आ गया, ये क्या है, ये कोई देने का तरीका है, ऐसे तो मैं कभी नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, और इसके शादी में अब तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, इसके कोई भी इनविटेशन में। अच्छा, दूसरा पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है इसका, यही इनविटेशन आया, दूसरा पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, आप लोग में से किसी ने किया भी होगा ऐसा कि ठीक है ना, आजकल तो व्हाट्सएप ही चलता है, अभी तो यही ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें क्या बात है, क्या बड़ी बात होगी, भेजा तो सही ना, कोई बात नहीं, इसमें ऐसा तो नहीं कि नहीं भेजा। अब बेचारा बिजी भी होगा, इतना एंगेजमेंट होती, नहीं फोन कर सका, उसने आपको पहले बोल दिया, एसएमएस कर दिया, ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। तो किसी के लिए वो बात बहुत बड़ी होगी, किसी के लिए वो बात थोड़ी बड़ी होगी, किसी के लिए बहुत छोटी होगी, और किसी के लिए कुछ है भी नहीं। तो इट विल डिपेंड अपॉन द इमोशनल कैपेसिटी ऑफ एवरी पर्सन इज डिफरेंट, हर बात के लिए। तो जितनी उसकी इमोशनल कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो बात को लेगा। अब मैं अगर ये कह दूं कि ये आप इसको ना, मतलब आपकी कैपेसिटी, मतलब आपको है सोचने की आदत है और यू फील अ लॉट, अब उसमें दूसरा कोई कितना भी सॉरी कह दे, अगर आपकी इमोशनल कैपेसिटी बहुत कम है,
तो दूसरे के सॉरी कहने का भी इम्पैक्ट होगा नहीं। तो इसलिए अब अटेंशन इसमें क्या चाहिए अभी, क्योंकि इमोशनल कैपेसिटी तो डिफरेंट है सबकी। अटेंशन और एफर्ट, अब उसकी जिसकी जैसे कैपेसिटी कम है, और वैसे तो सबके पास कैपेसिटी है, लेकिन अब उसके हाथ में ताकत कम है, तो इसमें क्या करेगा, वो क्या करेगा कि भाई आप उसकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाओ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके लिए मुझे सजेशन दो कि ओके ठीक है, यू डू सम एक्सरसाइज, थोड़ा चला करो, थोड़ा ये चीज खाया करो, दैट इज द एडवाइस आई नीडेड। आई डोंट नीड कि आप भूल जाओ ना, छोड़ो ना, इतना क्या है। कभी कभी कपल में दो डिफरेंट कैपेसिटीज है, ये नहीं समझने के कारण कितने झगड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम वो कहते हैं नहीं मैं तो जाऊंगी, वो कहते हैं नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा और ना तुमको जाने दूंगा। सो जस्ट बिकॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उसकी कैपेसिटी, अब हम सोचते आपको क्या है, हर बात को सोचने की आदत है, इतना सोचते रहते हो, लेकिन क्या है उसकी कैपेसिटी अलग अलग है। अगर हम उसकी इमोशन कैपेसिटी को बढ़ाने की सजेशन दे कि यस यू डू, ओके कोई बात नहीं आया तो, लेकिन ठीक है उसका पर्सपेक्टिव ऐसा है और उसने ऐसा कर दिया, एंड नाउ डू सम पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि उसको बात को फील करने की नेचर है, तो डू सम पॉजिटिव थिंकिंग। और जितना हम जैसे उसमें होता है, हम चलेंगे, हम कुछ ऐसा खाएंगे तो हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब वही चीज जो मैं पहले नहीं उठा सकती थी, जब कैपेसिटी बढ़ जाती है तो हम बहुत अच्छे से उठा सकते। तो अब जब मैं मेडिटेशन अपने ऊपर वर्क करते, अटेंशन और एफर्ट इंक्रीजेस द इमोशनल कैपेसिटी ऑफ द पर्सन। जितना अटेंशन हम ध्यान रखेंगे कि नहीं, एक ना कॉन्शियसली कि ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, लेकिन मुझे ऐसे नहीं सोचना है, मुझे सोचना है कि ये बहुत समझदार है। हम सोचते इतना बेसमझ है, उसने ऐसे कर दिया, हियर दैट अटेंशन इज रिक्वायर्ड कि नहीं उसने ऐसा किया, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं उसको इधर से जो थॉट क्रिएट करूंगी, ब्लेस करूंगी, बिकॉज माई थॉट इज रीचिंग द पर्सन एंड इट विल इंक्रीज और डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द सोल, इट विल हेल्प टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द सोल। तो आई विल जस्ट क्रिएट अ थॉट कि नहीं, बिकॉज फाइनली क्या है, नाउ दिस होल कॉन्वर्सेशन जो चल रही है कि उसने ऐसे कर दिया, उसने सिर्फ ऐसे इनविटेशन भेज दिया, वो किस पे चल रही है ये कॉन्वर्सेशन? फीलिंग्स के लिए चल रही है। द सब्जेक्ट मैटर इज द फीलिंग्स। तो इफ आई क्रिएट वेरी पावरफुल थॉट्स, उसने ठीक से नहीं किया, उसने मेरा डिसरिस्पेक्ट भी किया, मे बी सबको क्या, मेरे को नहीं बोला, सबको अच्छा इनविटेशन दिया होगा, घर में जा जाके दिया होगा, मुझे नहीं दिया इनविटेशन। टू दैट एक्सटेंट वो this person is doing it. Now I will say one is perspective, ऐसे करता है, अब मैं भी देख लूंगा, टिट फॉर टैट, मेरा भी आने दो, मैं भी नहीं इनवाइट करने वाली। दिस इज वन मेथड। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा मेथड, ओके फाइन, नहीं किया बट ही इनवाइटेड, इट्स फाइन, और इफ ही इज ओके और मुझे टाइम है, आई विल गो। उस ऐसे किया, ये किया, दिस इज वेयर आई एम क्रिएटिंग द पेन। तो दिस अटेंशन ओवर द सेल्फ, एंड दैट टाइम व्हेन दैट सिचुएशन हो रहा है, उस समय मुझे क्या सोचना है कि अभी हो गया, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, कर दिया, यहां से चली गई और फिर बाद में वहां से फोन करती है कि अब मैं नहीं करूंगी, ये काम नहीं करूंगी, मैं जॉब छोड़ दूंगी, ऐसा उसने बोल दिया। लेकिन अब मुझे जो क्रिएट करना है, मैं सोचूं कि ऐसे कैसे कर देते, लोगों को इतना भी सेंस नहीं है, ऐसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसे बीच में छोड़ देते, ये है वो पेन मैं क्रिएट कर रही हूं, और इसलिए अब फिर मुझे इसमें टाइम लग रहा है हील करने के। आई विल थिंक ओके फाइन,
the soul is pure, she didn't have that intention to do it, okay, no problem, उसको दूसरी जॉब मिल जाए, कोई बात नहीं, अच्छा वो सेंसिबल है। तो अब जब मैं इस तरह से सोचती हूँ, सो आई पुट अटेंशन ऑन माई सेल्फ, तो जब मैं खुद के ऊपर अटेंशन रखूंगी तो इट विल बिकम इजी, अब मेरा सोल पावर इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि कोई भी वर्किंग जब हम करते हैं हमारी सोल पावर इंक्रीज हो जाती है, और हमारी सोल पावर इंक्रीज हो गई, इसका मतलब क्या हुआ ओवरऑल। अब देखो मैं चलती हूँ और मैं दौड़ती हूँ तो इससे मेरी स्टेमिना इंक्रीज हो गई, तो इट इज नॉट कि खाली मैं बैग उठाने के लिए हेल्प हो गया, बट ओवरऑल मेरी कितनी सारी चीजों में मेरी तड़तड़ाहटी रहती है ना, मैं बहुत सारा काम कर सकती हूँ। तो एक बात के लिए मुझे हेल्प नहीं करता है मेरा अटेंशन, देयर आर मेनी थिंग्स विच हेल्प मी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर द सोल पावर इंक्रीज, तो इसका मतलब आई कैन बी साइलेंट। अर्लियर क्या था, आई वुड ऑलवेज बी रिएक्टिव, आई कैन फॉरगेट। पहले क्या था, मैं होल्ड करके रखती थी, ऐसे कह दिया सुबह से लेकर रात तक कि तुमने भोजन मैंने बनाया, इतना प्यार से बनाया, आपने महिमा ही नहीं की, तो आई होल्ड ऑन दैट थिंग। अब क्या होगा, आई फॉरगेट, ठीक है, नहीं की, फुल स्टॉप, नॉट वांटिंग एप्रिसिएशन। और अर्लियर वी यूज्ड टू बी वेटिंग कि कब मैंने इतने अच्छे ड्रेस पहना, कब मेरा वो, अब थोड़ा तो कोई तो मुझे अच्छा बोलेगा, कोई तो मेरा अप्रिशिएट करेगा। एंड नाउ सो लाइकवाइज देयर आर मेनी थिंग्स वेयर द सोल, विच इज अ प्रूफ कि सोल पावर इंक्रीज हो जाती है। पहले अटेंशन ऑन वर्ड्स होते थे, अभी अटेंशन ऑन थॉट्स है। सो इफ माई सोल पावर इंक्रीजेस, दिस इज द प्रूफ कि ये सब हो रहा है। और इससे क्या होगा कि जब मेरा अटेंशन हो गया अपने संस्कार में, तो मेनी एरियाज ऑफ द फीलिंग्स जहां जहां, तो इसमें नॉट ओनली बिकॉज जैसे सपोज मेरी कोई इंजरी हुई, हैंड इंजरी हो गई, तो नॉट ओनली वो पेन दे रहा है, लेकिन वो हाथ जो जिस जिस चीज के लिए यूज होना होता है वो सब काम स्टॉप हो जाते हैं ना। अब मैं यहाँ इसमें वजन भी नहीं उठा सकती, इस हाथ से खा भी नहीं सकती हूँ, इस हाथ से कुछ लिख भी नहीं सकती हूँ, मतलब माई दिस हैंड हैज बिकम यूजलेस इन मेनी एरियाज जस्ट बिकॉज एक इंजरी होने से। अब ये फीलिंग्स जो है जब इंजर्ड हो जाती है, कौन कौन सी एरियाज में यूज करना होता है इसको, फीलिंग्स को? हर जगह यूज होता है फीलिंग्स को। अगर चाहे आपको ऑफिस जाना है, मतलब कितनी सारी एरियाज है, चाहे बच्चे से बात करनी है, चाहे ऑफिस में काम करना है, सो मेनी एरियाज में फीलिंग्स है। तो अगर वो इंजर्ड हो जाती है तो कितनी सारी एरियाज इफेक्ट हो जाती है। तो इस कारण, इसलिए जब जैसे वो होता है ना मोबाइल, कितने सारे काम होते हैं उसके, टिकट भी बुक कर लो, फोन भी कर लो, व्हाट्सएप भी कर लो, मैसेज, वॉइस मैसेज, इतने सारे इसके काम है। तो लेकिन अगर वो इफेक्ट हो जाए हमारे सारे काम, और इसलिए फिर डिले हो जाता है, एंड देयरफॉर देयर इज अ डिले इन द पीस, क्योंकि वो फीलिंग्स इफेक्ट हो गई है। तो अटेंशन किस में रखना है कि जैसी बात हुई, जो मेरा पहला रिएक्टिव था, अब आई बी साइलेंट, आई हैव टू जस्ट कॉन्शियसली वर्क ऑन माई सेल्फ कि नहीं, अब मुझे ऐसे ही सोचना है, उसने मुझे फोन नहीं किया, फोन नहीं उठाया, आई विल स्टिल थिंक कि नहीं, जरूर कुछ काम होगा, ओके, ही इज सेंसिबल, ही इज सेंसिबल। हम क्या करते हैं, कोई मेरे अकॉर्डिंग नहीं करता है, 10 जगह उस बात को फैलाते रहते, ये सुनता नहीं है, इधर बहुत क्रिएट करते रहते हैं। दिस इज द एनर्जी, ये अपने आप को इंजर कर रहे, उसको भी वीक कर रहे। तो दिस इज वेयर वी हैव टू टेक अटेंशन। तो इसलिए अच्छा, नाउ वन मोर थिंग, चलो मेरी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई काम करने की, लेकिन जब तक एक और फैक्टर चाहिए, तब आई एम एबल टू फॉरगिव द पर्सन
और माई सेल्फ? कौन सा फैक्टर? मेरे पास कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी भी कब इंक्रीज हो, कब यूज हो सकती है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि जब तक आई डोंट वांट टू डू इट, वांट टू डू, कभी कभी हमारे पास कैपेसिटी है, कोई चलो ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे नहीं करना है, मुझे क्षमा करना है, मुझे उस बात को आई जस्ट कैन नॉट टेक इट, मैं उससे बात नहीं करने वाली। तो जब तक वांट टू डू नहीं है, अगर कैपेसिटी है लेकिन वांट टू डू नहीं है, तो भी हम उसको यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं सबके साथ मुझे ठीक है, ये इसके लिए ना मुझे नहीं चलता है, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वांट टू डू नहीं है। आई डोंट वांट टू फॉरगिव, आई डोंट वांट टू फॉरगेट। तो जब तक आई डोंट वांट टू डू इट, so in spite of having it, I won't do. So what is very important also, कैपेसिटी को बढ़ाना है और उसके साथ साथ फिर want to do, मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए, don't want to keep any pain। इतना सा ब्लड भी आता है, we don't allow it to ooze, do we? हम क्या करते हैं, immediately कुछ ऐसा करेंगे कि जो वो हील हो जाए। वी कैन नॉट वेट कि होने दो, करने दो, बट हियर हम वेट करने देते, ऐसा हुआ, ये हुआ, उस दिन भी किया, तो ये सब एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और ये एक्यूमुलेशन मेरे दर्द का कारण। तो उसके कारण फिर बहुत सारी एरियाज, एक बार ये इफेक्ट हो जाए, अब हमारा काम में मन नहीं लग रहा है, उस दिन मेरा खाने में भी मन नहीं लग रहा है, बच्चे इतनी खुशी से ऑफिस से, आप जब ऑफिस से आए ऐसी, लेकिन जो बात ऑफिस में हो गई, अब आप उनका भी कुछ नहीं सुन पा रहे, वो एक इम्पोर्टेंट बात अपनी क्लास की बता रहे हैं, नहीं आपका मूड ही नहीं है, हो जाए ना, क्यों? इधर मैंने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो इसलिए ये होल्ड करना, तो इस कारण अगर होल्ड करने की नेचर है ना, इट डजंट मैटर हाउ बिग इज द साइज ऑफ द सिचुएशन, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, बात पकड़ के रखने की आदत है। तो इसलिए दूसरा जिसने कहा उसकी प्रॉब्लम नहीं है, और लेकिन मैंने पकड़ के रखा है, तो मुझे उसको फास्ट रिलीज करना है और मुझे एकदम फ्रेश होना है। और फिर हम अपनी बहुत बड़ी क्रिएटिविटी को स्टॉप कर रहे हैं। जैसे ही मुझे, अब मैं एकदम एंटेंगल्ड हूं एक बात में, अब मैं ड्राइव भी कर रही हूं और वो रास्ता वहां ब्लॉक है, मुझे पता है और भी रास्ता है, लेकिन उस समय मेरी वो बुद्धि चलती नहीं है। ऐसे भी अनुभव किया होगा ना सभी ने, बुद्धि चलती नहीं है क्योंकि वो बात बहुत पकड़ के रखा हुआ। तो हमने कितनी एरियाज में उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो इस कारण एक इफ आई होल्ड, तो इसलिए वांट टू डू वर्क इंपॉर्टेंट है, और देयरफॉर एनीथिंग मोर इंपॉर्टेंट इज वन मोर थिंग, कि व्हेन आई एम थिंकिंग ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, आई एम कनेक्टिंग माई सेल्फ with an energy field of that person whom I don't like। उसके बारे में सोच रही हूं, तो उसके एनर्जी फील्ड से मैं कनेक्ट हो गई, और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो व्यक्ति मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो उसके बारे में सोचो ही नहीं, क्योंकि जितनी मैं उसके एनर्जी फील्ड से कनेक्ट होती जाऊंगी, जैसे ये गर्म है, अगर मैं इन्हें इधर हाथ रख दिया तो मेरे वो आएगा ही ना, क्योंकि मैं कनेक्ट हो गई यहाँ, और यहाँ ब्लड बहुत आ रहा है और मैंने हाथ रख दिया, तो फिर मेरा इधर भी तो आएगा ही। तो इसी तरह इधर मैं कनेक्ट हो गई, तो उसकी जो एनर्जी है, और उस समय क्रोध की है, नफरत की है, वॉट एवर दैट एनर्जी, सो आई विल जस्ट कैच इट, और फिर आई डोंट नो, आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल हर्ट,
and I'm catching. So what is resentment? A very powerful bond with the person whom you don't like and you're not able to leave that. It is even यहाँ तक बता दिया, it is stronger than steel also. ठीक है, स्टेनलेस स्टील से भी बहुत ज्यादा है आपका, इतना पावरफुल बॉन्ड है. तो इसलिए हमको क्या करना है, वो एनर्जी फील्ड से डिस्कनेक्ट और यहां से डिस्कनेक्ट, उस यहां से वेरी पावरफुल थॉट्स. तो नो इंजरी ओवर हियर, नो इंजरी. हम सपोज लास्ट वीक ही सोचो, कुछ बात हो गई, आपने कोई स्ट्रॉन्ग बात की, आप में से है कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ एक हफ्ते में और आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बात कर दी. अच्छा, आज आप उस बात को रिकॉल करते हो तो क्या लगता है, क्या लगता है? जो स्ट्रॉन्ग बात की, अरे पेन है, आई शुड हैव नॉट स्पोकन दैट. तो एक्चुअली जो ये इधर पेन था, एज इट इज, थोड़े समय के बाद हमको पता है कि वो वैसे ही डाउन हो जाता है. तो इट्स जस्ट दैट फ्रैक्शन ऑफ सम मिनट्स की दैट टाइम इफ आई डोंट लाइक व्हाट दैट अदर पर्सन हैज सेड, उस समय मुझे केवल साइलेंट होना होता है. बिकॉज अदरवाइज अगर मैं उस समय कुछ कह भी दूं, आई ओनली विल हैव गिल्ट ऑफ व्हाट आई एम डूइंग. क्यों मैंने कह दिया, चाहे उसने गलती भी की, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कह दिया. तो वो एक डिफरेंट एडिशनल पेन हम क्रिएट करते हैं. सो नाउ दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. तो इधर हमें क्रिएट नहीं करना है. पॉसिबल है, ये सब हो सकता है. Yes, हो सकता नो, है. हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है. और फिर जितना हम पेन नहीं क्रिएट करेंगे, हम बहुत फ्रेश रहेंगे. तो इसलिए ये हम होमवर्क यही है अगले के लिए, कुछ भी हो जाए, एनीथिंग, बट आई विल बी फ्री फ्रॉम द पेन. आई डिलीवर, ये होमवर्क करेंगे. एनीथिंग हैपन्स, आई विल फ्री माई सेल्फ फ्रॉम पेन इमीडिएटली बाय डेलिबरेटली थिंकिंग ही शी इज अ प्योर सोल. उसके इंटेंशंस अच्छे हैं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी जितनी है, दैट इज द इंटेंशंस. तो बेचारी की कैपेसिटी कम हो, तो आई गिव दैट ब्लेसिंग्स. अगर उसकी कम भी है ना, तो उसकी बढ़ानी है मुझे. हिज इंटेंशंस आर गुड, आई एम ऑल्सो वेरी प्योर सोल. बस 3 चीज है, इजी है ये. आपको अगर कुछ बात हो भी गई, मैं इमीडिएटली पेन से रिलीज करूंगी. सो हु इज फॉरगिविंग हूम? कौन किसको फॉरगिव कर रहा है? अपने आप को फॉरगिव कर रहे हैं. कोई दूसरा मुझे फॉरगिव नहीं कर रहा. साइलेंट बट ईयर, साइलेंट इज नाइस बट ईयर साइलेंट. हाँ, ऊपर से भी हम साइलेंट रहे तो उतना हमारा डैमेज बच सकता है, लेकिन अगर इधर रहे तो नो डैमेज ओवर ईयर ऑल्सो. क्योंकि आप देखो, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ का डैमेज बहुत डिफिकल्ट, बहुत सारे एरियाज में इफेक्ट करे. यहाँ का डैमेज तो फिर भी, लेकिन यहाँ का डैमेज. तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. तो इसलिए सिंपल मेडिटेशन करते हैं अभी तक, एंड इट्स अ डिसीजन. आज लो या 4 दिन बाद लो, ऐसा हुआ, ऐसा किया, ऐसा, आज ही हम डिसाइड कर लेते हैं. अभी तक मेरे लाइफ में जो भी हुआ, जिसने भी किया, तो आज उसको रिलीज कर दो. ही इज फ्री. तो मुक्त उसको करना है. तो अपने आप को सबसे पहले पॉइंट ऑफ लाइट फील करें. मैं प्योर एनर्जी हूं. वेरी पावरफुल. परमात्मा की ज्योतिर्बिंदु की किरणें मेरे ऊपर, शांति की, प्रेम की. सो आई एम वेरी पावरफुल सोल.
और अब मुझ सोल पे कोई इंजरी अगर है, हम देखें, रह रह के कोई बात मुझे याद आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस लेवल तक तो नहीं करना चाहिए। कोई भी इंजरी सोल पे है, उसको परमात्मा की किरणें से उसको निकाल रहे। सोल इज नाइस, whoever has done anything to me, वो सोल बहुत अच्छी है। बेसिकली तो वो बहुत अच्छी है, उसके इंटेंशंस अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी सोल हूँ। बार बार उस सोल को प्योर फीलिंग्स दे रही हूँ। उसकी एनर्जी फील्ड नेगेटिव से मेरा नो कनेक्शन, मेरी पॉजिटिव एनर्जी उसको इम्पैक्ट करेगी। वो आत्मा अच्छी है। I release all the feelings which until now I was holding. सब बातों से मैं मुक्त। ओम शांति। So any questions? Clear? Next time we'll do how do I get rid of the guilt. तो वो नेक्स्ट टाइम हम कवर करेंगे, तो ये सब होमवर्क करके आएंगे। ओके, हम शांति। Great. Thank you, Didi. So we learned that understanding the intentions and moving on is the best thing which we can do. And everybody, let's think well and create positive vibes in our work climate, because we understand our own responsibilities. Okay, Nidhi sir wants to ask something. Sir, please. मॉर्निंग दीदी। दीदी, आज के लेसन से मैं कुछ रिलेट कर रहा हूँ। वो ये है कि जो आपने स्टार्टिंग में मैं समझाया था कि किसी से आप एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर लेते हो और वो फिर अगर नहीं होती तो ये सिचुएशन आ जाती है। क्या ये इंटरलिंक है चीजें दोनों? क्योंकि अगर आपने एक्सपेक्टेशन रखी नहीं होगी तो आप इस सिचुएशन में आओगे ही नहीं कि फॉरगिवनेस करनी पड़े या आपको हार्ड फीलिंग हो। तो क्या ये दोनों बातें मतलब लिंक्ड हैं, और या इनका कोई आपस में संबंध है, या कुछ इनका कोई निवारण भी हो तो भी बताइए। वंडरफुल। ये तो एक्सपेक्टेशन से तो बहुत डायरेक्टली लिंक्ड है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वर्क कल्चर है, आपने सबऑर्डिनेट को या जूनियर को कुछ काम दिया और उसने हाँ भी कहा और फिर बाद में वो कहीं चला गया और उसके बाद वहां से फोन कर देता है, तो और उस समय फिर आपको और फिर मतलब कुछ और ड्रास्टिक स्टेप भी उठा लेता है। फिर हम सोचते कि अब इतना तो जब काम दिया है तो एक्सपेक्टेड है ना कि भाई नेचुरल है वो काम करके लाएगा, कि ऑल ऑफ अ सडन ऐसे फोन तो नहीं करे। तो वो तो एक सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग होगी रिजल्ट का कि काम तो करना चाहिए। अब जो बाद में बात आती है कि वो नहीं कर रहा है, उस समय अगर हम थॉट क्रिएट करें कि ठीक है उसका रोल इतना ही था, नहीं कर रहा है, ओके फाइन, अब हम ऑल्टरनेटिव सोचेंगे। ही इज अ प्योर सोल, ही इज पावरफुल सोल, अभी इसका मेरे साथ ऐसा रोल है, पार्ट है, इसलिए वैसे प्ले कर। तो मैं अभी उसका नहीं काम करने का हावी नहीं होने, इंजरी नहीं क्रिएट कर। तो जब इंजरी नहीं होगी, आई एम हेल्थ स्वस्थ है, तो मैं ऑल्टरनेटिव दूसरा सोच सकती हूँ, नहीं तो वो इंजरी में वही याद आता रहता है। तो एक क्वेश्चन और और था मेरा कि हम लोग मोस्टली लोग इसमें से मतलब
85% टाइम पे हम फॉरगिवनेस करते ही होंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ये मुझे मालूम नहीं, अलग अलग नेचर होता है सबका, पर ज्यादातर केसेस में हम लोग कर ही लेते हैं कि नहीं ठीक है चलो एडजस्टमेंट, मतलब ठीक है नहीं हुआ, ओके फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन। सो बट कभी कभी हम वो सिचुएशन, जब वो एंगर की सिचुएशन आ जाती है या सैडनेस की सिचुएशन आ जाती है, या हम मतलब डिमोरलाइज हो जाते हैं, वो जो पार्ट होता है वो होता तो बहुत ही रेयर है, लेकिन वो हो जाता है, जिसके बारे में अभी आप हमें बता रही थी। उसको रोकने के लिए हमें कट ऑफ पॉइंट क्या, मतलब कहाँ से हम कट ऑफ हो कि वो सिचुएशन भी ना आए? उसके लिए जैसे पहले से रोज आप वॉकिंग करेंगे, रोज हम कुछ ऐसे अटेंशन देंगे, एफर्ट करेंगे, कुछ अच्छा डाइट खाएंगे, तो हमेशा ही हमारा तंदुरुस्ती रहेगी। तो जी फिर वो प्रॉब्लम आएगी भी तो, लेकिन हमको लगेगा नहीं। तो हम प्रॉब्लम को नहीं स्टॉप कर सकते, लेकिन एज ऑफ, और वो भी तंदुरुस्त वॉकिंग कब करना है, जब बीमार होने के बाद तो वैसे भी नहीं कर सकते। वो तो जब हम स्वस्थ है उस समय हमको टाइम निकाल के अपने ऊपर अटेंशन देना हो। तो अभी जब हमारा माइंड ठीक है, अभी कोई सिचुएशन नहीं है, इनफैक्ट दिस इज द टाइम व्हेन आई एवरीडे हाफ एन आवर अगर हम बैठे, थोड़ा पॉजिटिव इस तरह की क्लासेस करें और कुछ डीप रियलिटीज ऑफ लाइफ समझे कि नहीं, हर सोल है, वो रोल, वो सोल जितना उसके अंदर रिकॉर्डेड रोल है वही प्ले करेगी। तो इसलिए जब हम ये इस तरह की पॉजिटिव बातें पहले से ही सुन रहे होते हैं ना, तो फिर वो ऐसी गति आती नहीं जो जो आपने नेक्स्ट जो बैलेंस 15% ऑफ द टाइम ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो उसमें हम हैंडल कर पाते हैं। बट ये बहुत पहले से थोड़ा थोड़ा हम स्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं तो हमको स्पिरिचुअलिटी है ना 60+ के बाद है, तो सारे एग्जाम्स जीवन के देने के बाद, पूरे घाव लेने के बाद फिर उसकी ट्रीटमेंट करते बैठो, तब तक घाव बहुत बढ़ जाते। इन्हें घाव का लगातार इलाज जारी है, आगे भी रहेगा, तो साथ साथ कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। दीदी ओम शांति। इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। वो सोल हमारे लिए अच्छा नहीं कर रही है, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं कि नहीं वो पॉजिटिव सोल है, पावरफुल सोल है, हम ऑप्टिमिस्टिक है, डे बाय डे ऑप्टिमिस्टिक ही होते जा रहे हैं, वो अच्छा ही नहीं कर रही है, और हमारा साल 2 साल 3 साल निकल रहा है, या हम लोगों का कुछ करियर को लेके उसको लेके हम लोग सफर भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट सोल। तो इस केस में क्या करें? क्या वो सोल चेंज हो सकती है हमारी इस पॉजिटिव थिंकिंग से भी? हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे, सिर्फ स्पिरिचुअली हम पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं और उसको पॉजिटिव पॉजिटिव कहते जा रहे हैं, और हम तो पॉजिटिव हैं बट वो नहीं हो रही है, देन क्या करें? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली हम जो पॉजिटिव हो रहे हैं इसमें हमारा कोई घाव नहीं बन रहा है, लेकिन वी हैव टू बी वेरी सेंसिबल ऑल्सो। सपोज अगर वो चेंज नहीं हो रही है, उसके कारण मेरा कोई या तो घर इफेक्ट हो रहा है या ऑफिस का वर्क इफेक्ट हो रहा है, हम उसको जो स्टैंड लेना है वो स्टैंड, चाहे जैसे हम 1 बार चांस देंगे, 2 बार चांस देंगे, जो स्टैंड लेना है वो तो लेंगे, लेकिन हम डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम पेन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम स्टैंड भी नहीं लेंगे। तो वो स्टैंड हम लेते हैं ताकि ऐसा टाइम नहीं वेस्ट हो कि ये है, अगर हमें लेना है कोई इस तरह का स्टैंड तो वो लेंगे, लेकिन वो ले उसके अंदर ये एक रिवेंज की भावना नहीं होगी अगर तब भी, क्योंकि मैं उसके लिए नेगेटिव फील नहीं कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि एवरीवन हैज अ रोल, तो उसकी रिवेंज की फीलिंग नहीं है। आई गिवन द चांस, अभी वो चांस नहीं यूज हो रहा है, ले रही है, तो अब मुझे ये स्टैंड लेना है। तो दैट ऑल्सो हैज टू बी इज वेरीज फ्रॉम केस टू केस, कि इसमें मुझे वेट करना है, सफर होते रहना है, या इसमें मुझे एक्शन लेना है। ये हमें जजमेंट करनी होगी कि जहां पर अंदर हम रखते नहीं है कि ऐसे किया वो किया, बात नहीं करना है, उसके तरफ देखना नहीं है, या समथिंग ऑफ दैट काइंड। वो बहुत मेथड्स है हमारे होल्डिंग ऑन का, एंड वी माइट बी इवन very mastery also in holding on, using that methods.
होता है ना, तो वो मेथड्स को हमको थोड़ा ध्यान रखना है उसमें। दीदी थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरा एक क्वेश्चन था। अच्छा, लेट नहीं हो रहा है? पुष्पांजलि बहन। Yes, I was going to say the same thing. Okay, last question for the day. ओके ओके। दीदी मैं जानना चाह रहा था कि जैसे हम कई बार के बहुत माफ कर देते हैं, कोई भी अगर मान लो कोई नेग्लिजेंसी करता है या कोई मान लो ज़्यादा छुट्टियां हमारा विदाउट इन्फॉर्मेशन या कुछ इस टाइप का वर्क प्लेस के ऊपर, तो हम लोग वैसे एक्चुअली तो डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए उसके ऊपर, लेकिन हम उसको उसके परिवार को देखते हुए या उसको देखते हुए मान लो हम उसके ऊपर दया कर देते हैं और उसको माफ़ कर देते हैं, लेकिन उसको देख के जो और एनवायरनमेंट है, जैसे एनवायरनमेंट के अंदर दूसरे लोग हैं, तो जब उनको माफ़ कर देते हैं तो अगर उसको देखा देखी दूसरा भी अगर कोई छुट्टी मारता है या कुछ है, तो अगर मैं एक्शन लेता हूँ तो उस केस के अंदर वो कहते हैं सर आपने जैसे उनको तो माफ़ किया, उनको तो कुछ नहीं किया, आप हमारे को कुछ करना चाह रहे हो, तो इसका नाजायज फायदा नहीं उठा लेते कि अगर हम बार बार मान लो सोच रहे हैं कि माफ़ करते रहें हम, कि क्योंकि उससे उसके परिवार के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा और टोटल ओवरऑल उसकी भी इनकम वगैरह सारी चीज़ पे इम्पैक्ट आएगा। उसको समझा दिया प्यार से, फिर भी नहीं समझ पा रहा है, लिख के भी ले लिया रिटर्न के अंदर, फिर भी लेकिन हम उसको माफ़ करे जा रहे हैं, तो क्या ये सही है? तो फिर इसमें देखो यही है, इसमें हमको बैलेंस रह के डिसीजन लेना हो कि अगर जैसे आपने कोई टाइम लिमिट तो रखेंगे ना, जैसे अभी भी बताया कि 1 बार 2 बार, भाई ऐसे कंटिन्यू करेंगे चांस आप, क्योंकि यू हैव टू बी इम्पार्शियल ऑल्सो। अगर इसको 10 चांस दिया और किसी को 2 चांस भी नहीं दो, और तो फिर अगर एक को दिया फिर सबको देना होगा, मतलब इन दैट केस। तो इसलिए हमें थोड़ा क्लैरिटी और जिसको हम कहते हैं नॉलेजेबल अबाउट ऑल द 3 टाइम्स, त्रिकालदर्शी हम कहते हैं कि इसमें ये बेनिफिट, ये एक बार दे दिया मतलब 2-3 चांसेस आपने डिसाइड कर लिया, और अगर फिर भी नहीं कर रहा है, आप फैसिलिटीज पूरा दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो अपना सुधर ही नहीं रहा है, तो दया भी करनी है, लेकिन दया को एक रीजन भी देना है। ऐसी नहीं दया कि जिसके कारण बहुत सारा और भी नुकसान हो। एक चीज के फायदे के कारण हम बहुत सारे नुकसान तो नहीं कर लेंगे ना। एक कंपनी में फायदा और 4 कंपनीज नुकसान हो, वो हमें नहीं करना है। तो हमें वो, हाँ, फिर भी हम नेगेटिव नहीं क्रिएट करते, हम माफ नहीं कर रहे, हम उसका डिस्टरबेंस यहाँ क्रिएट नहीं कर रहे, उसको माफ उतना ही करेंगे जो लॉफुल है। बाकी हम अपने आप को माफ कर रहे हैं कि उसकी अफेक्ट नहीं होने दे रहे। ठीक है, थैंक यू। ओके, बाकी हम करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन तो रखेंगे। Great. I am very much glad to see the response and the questions which we are getting from just the second session itself. Thank you, Didi, for answering them all, and especially to the questions asked by the audience and the employees. Thank you very much for attending the session today. A very good day to all of you. Thank you. Om Shanti, Didi. Questions were very nice. So you Yes. should go on having such questions. That means, और बहुतों को फायदा होगा अगर एक भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो यू डोंट नो कितनों को बेनिफिट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you, everyone.